व्हाट आर बुलियन नंबर्स? बाइनरी नंबर्स का पता है आपको? यस सर, बाइनरी नंबर्स का पता। यस, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू तो आप उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स तो आप उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों ने एंड गेट का देखा होगा, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इसके यस सर, अलावा वो पढ़ा है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर एंड सो ऑन। सो ये डिफरेंट जो गेट्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए कंडीशंस को डिफाइन करवाने में। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, और आप लोगों ने जो है वो ए बी सी की वैल्यू डिफाइन करवा दी। ओके जी, करवा दी। अब क्या है, x एक वेरिएबल है। आप ये चाहते हैं कि x वेरिएबल इस तरह से वो सॉल्व करे कि सबसे पहले वो x इज इक्वल टू 1 पे सॉल्व करे और सब वो y का आंसर मुझे दे, फिर वो x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करे, फिर x के लिए 3 की वैल्यू ले, 4 5 6 अप टू 100। या आप लोग ये चाहते हैं कि वो ऑड नंबर ले, फॉर एग्जांपल 2 के गैप के साथ आगे चले, तो इसके लिए जो है ये लूप्स यूज होते हैं दरमियान में, तो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं आप लोग। तो इफ स्टेटमेंट है आपके पास, फॉर स्टेटमेंट होती है, वाइल लूप्स होते हैं, और स्विचिंग भी होती है। या आप लोगों ने सी प्लस प्लस में ये प्रोग्रामिंग और लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया होगा, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। यस सर। Okay, good. So till now we have learned for the how to create a script file and function file. For example, we go to the MATLAB and then we select the new option and here we can find out the script. So script file में आप last जो example हमने class में की थी, जो heat exchangers से related थी, design of heat exchangers, how to define the length of tubes depending upon the given mass flow rate and temperatures. So it was all about that. And in addition, we have also developed the function file for that program. In the same, in the continuation of lecture, inshallah, in today's lecture, we will solve one of the design of machine elements, another problem that is related to the design of shafts. For example, we will have the given material of shafts, what is the modulus of velocity and overall length of dia of the shaft, and given conditions will also have the applicable load or torque. So depending upon the given parameters, we have to design the key for the shaft. So in design of machine elements, you people have studied how to define the key element. The key element have a proper length, width and height, or you can say length, width or thickness. So yes, so material of key will also be depending, and its E or G values will also be depending upon the programming. So we want to develop a program on the MATLAB in a script file in such a way that with the application of a certain load, what will be the applicable length of for the key. Okay, so before that lecture, we will go for the conditional loops or logical operators. So let's start. This is the main editor environment and command window. You people know well. Okay. Let's start. A 45 millimeter diameter shaft is made out of steel with a yield strength of 400 megapascal. A parallel rectangular key of steel with a yield strength of 340 megapascal is to be used. This is the yield strength of shaft. Anyone? Very good, shaft. And this is the yield Key. strength of key. And this is the diameter of shaft that is given. Write a MATLAB code to find the required length of key. If the shaft is loaded with the maximum permissible torque, what is the given condition? Maximum permissible torque. Okay. So keep in mind, use maximum shear stress theory, very important, because आपके पास different जो है stress theories available हैं, तो अभी जो theory आप use करेंगे वो shear stress theory use करेंगे. And assume a factor of safety of 2. Given factor of safety is 2, width is 14 mm, thickness is 9 mm. These are the given parameters of key. Width of key is given, thickness of key is given, and we have to find the length of the key using the maximum shear stress theory for the maximum permissible torque.
In addition, we are provided with the dia and material of the shaft and material of the key. So let's start. We are well familiar with these formulas. This is the shear stress theory to find out the length while the compression. अगर तो आपका मटेरियल का फेलियर जो है वो कंप्रेशन में हो रहा है तो उसके लिए आप लोग ये फार्मूला यूज करते हैं. इसको बेशक आप लेफ्ट हैंड पे ले जाएं तो क्या बनेगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू 40 ओवर एल टी डी. ओके, सो दैट इज अगेन फोर्स पर यूनिट एरिया. So we are here we have to find out what is the value of torque, what is the value of T and D, these both are given, and what is L we have to find, and before that we have to find what is sigma C. Okay, also some of the other formulas are available. Again here you can see this is the torque, this is the modulus of rigidity, this is the torque, this is the radius, this is the failure by shearing. This formula is related with the failure of shearing, and this is related with the failure by torsion. You people are well familiar with all of these formulas. Okay, let's start. What are given parameters? We are provided with D, sigma yt for the shaft and sigma yt for the key. Okay, we are provided with the width of key and thickness of key. Okay, this is the stress, yield stress of the key, and this is the factor of safety, that is 2, and this is the length of key we have to find. Okay, any problem? Okay, sir. No problem. Okay, so check it. This is how we can find maximum shear stress. We have to divide the yield stress by 2 and factor of safety. So this is the division factor, we can see. इसी तरह टाउ मैक्स आपने ये फाइंड कर लिया, सिग्मा वाई टी गिवन है. अब ये सिग्मा वाई टी एक दफ़ा तो शाफ्ट का आप चेक करेंगे, शाफ्ट का मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, इसी तरह फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का की भी निकालेंगे. ठीक है, तो ये सिग्मा वाई टी आपने उसमें पुट किया, फैक्टर सेफ्टी 2 रखा. एट द एंड वी हैव अ शेयर स्ट्रेस ऑफ 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर फॉर द शाफ्ट, and this is shear stress that is defined for the key. So for key element it is 85 Newton per millimeter square, and for shaft element it is 100 Newton per millimeter square. Okay. Okay, sir. Okay, we know that the maximum torque transmitted by the shaft and key, जो मैक्सिमम जो फार्मूला हमारा टॉर्क का गिवन है, ये टॉर्क का जो फार्मूला हमारे पास गिवन है पाई बाय 16 में, तो इस फार्मूला में T इज इक्वल टू पाई बाय 16 इंटू टाउ मैक्स. तो टाउ मैक्स जो है वो आपको पता है ये है फॉर दी शाफ्ट. तो फॉर शाफ्ट आप क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ था मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क इफ द शाफ्ट इज लोडेड विद द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क. इफ शाफ्ट इज डिजाइन टू लोड एंड ट्रांसमिट द मैक्सिमम परमिसिबल टॉर्क, उसके लिए जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो हम यूज करेंगे, दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आप देख रहे हैं पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी में हमने जो फार्मूला यूज किया है उसमें जो शेयर स्ट्रेस यूज किया है वो हमने शाफ्ट का किया है. तो एट द एंड व्हाट वी हैव द टॉर्क फॉर द कोरेस्पोंडिंग शेयर स्ट्रेस. ओके, टॉर्क आपने फाइंड कर लिया. अब क्या है, ये सारी चीजें आपको गिवन है और आप इजीली लेंथ फाइंड कर सकते हैं. दिस इज योर लेंथ. We know that the maximum torque transmitted is this. जो टॉर्क की वैल्यू आई थी और जो गिवन पैरामीटर से आपके पास, वहां से आपने लेंथ निकाल ली. Let us consider the failure of key due to the shearing. अभी जो फार्मूला यूज किया हमने वो shear स्ट्रेस से फेलियर हमने यूज किया है. मैंने आपको बताया था ना, बाय टॉर्शन बाय कंप्रेशन फेलियर हो रहा है, बाय shear भी हो रहा है, तो ये फार्मूला यूज किया लेंथ का. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया फेलियर बाय शेयर. तो फेलियर बाय शेयर हो रहा की के एलिमेंट में, वो ये लेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि इतनी लेंथ होनी चाहिए की. इसी तरह अब फेलियर बाय क्रशिंग भी आप लोग चेक कर लें, उसके लिए की लेंथ ये होनी चाहिए. तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि अगर तो शेयर से फेलियर हो रहा है तो की लेंथ 67 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर फेलियर हो रहा है बाय कंप्रेशन या क्रशिंग तो उस केस में की लेंथ किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 105 मिलीमीटर. डन.
Any problem? अच्छा, no sir. Okay. So what we have to consider, we can see that in some cases we have to we have the values in the point, we have point values. For example, here we have 104.6 mm and we can round off कर सकते हैं आप इसे, इसको क्या लिख सकते हैं, 105 लिख सकते हैं या नहीं? जैसे 105 लिख देंगे। यस, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये होता है कि मैट लैब में अब जाहिर है जो आंसर आ रहा होगा हमें तो नहीं पता कि वो पॉइंट में वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, तो उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं मैट लैब में, राउंड की कमांड यूज करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो भी आंसर आ रहा होगा अगर वो 0.5 से ग्रेटर होगा तो उसको ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर देगा, अगर लेस होगा तो उसको पॉइंट वैल्यू को इग्नोर कर देगा। तो ये फार्मूला वो सब पे अप्लाई करेगा। डन? ओके सर। Okay, so taking the larger value of the two values, we have 105 mm. So this is the corresponding length of the key. We have considered the failure by crushing and shear. Okay, now let's solve it on the MATLAB. What you will do? This is the MATLAB program. This lecture is already uploaded on the Moodle. You have to type CLC. This is clear all. What will happen with clear all? All the variables in the workspace will be cleared. This is the shear stress for key element, sorry, shaft element, and this is the shear stress for की एलिमेंट। key element. This is the width of shaft. This is the thickness, width of key. This is the thickness of key. This is your factor of safety. Done? यस सर, सब कुछ दे ओके, ये सब कुछ हमने जो गिवन पैरामीटर से हमने डिफाइन कर दिए। ओके, सो हमने फिर क्या किया, फिर हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड किया किस किस चीज का, शाफ्ट एंड की एलिमेंट का। तो डिवाइड बाय 2 इंटू हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते थे, तो ये आप देखें, ये फॉर शाफ्ट एंड की हमने क्या फाइंड कर लिया, शेयर स्ट्रेस। तो जब हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड किया तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आ रहा था वो हमने उसको यूज करते हुए हमने टॉर्क फाइंड किया, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो इससे अब क्या होगा, अब टॉर्क फाइंड हो जाएगा। फिर हमने वही टॉर्क जो आ रहा था वो हमने यूज किया शेयर स्ट्रेस थ्योरी में और कंप्रेशन स्ट्रेस थ्योरी में। तो शेयर स्ट्रेस के लिए जब हमने यूज किया तो उससे हमारे पास लेंथ आ गई है, तो वो जो आ रही थी इस फार्मूला से आ रही थी। फिर इसी तरह जब हमने कंप्रेशन के थ्रू लेंथ फाइंड की तो हमने इसमें वैल्यू पुट की और इससे जो वैल्यू आ रही थी। एनी प्रॉब्लम? सर ये शेयर वाले में 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ? यस, मिलीमीटर था ना उधर आंसर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर आपका मीटर में आएगा। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, it is very simple example. It is very simple example with respect to the heat transfer design for the heat exchangers. अगर आपने वो कर ली थी ये तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ और से सुनिएगा। आपने लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ की विद रिस्पेक्ट टू शेयर भी फाइंड कर लिया, आपने लेंथ ऑफ की विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेशन भी फाइंड कर लिया। ओके, सो इन केस ऑफ MATLAB वी वांट टू यूज वन ऑफ द लेंथ, वी वांट टू यूज वन ऑफ द लेंथ। अब वो कौन सी लेंथ हम यूज करना चाह रहे हैं, कम वाली या ज्यादा वाली? ज्यादा वाली सर, क्योंकि वो सेफ होती है। ज्यादा वाली, यस, वो सेफ होती है। अब ज्यादा वाली यूज करनी है, MATLAB को मुझे उसके लिए समझाना होगा, मुझे MATLAब को कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताना होगी। अगर ये से बड़ा हो तो फिर ये वैल्यू आए, अगर ये से बड़ा हो तो ये वैल्यू आए। ओके, दीज आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जांपल आई विल डिफाइन व्हाट आई विल डिफाइन। अच्छा, पहले उसको छोड़ें, पहले इस चीज को देखें। दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ की, योर आंसर विल डिस्प्ले एज अ फ्लोर ऑफ दिस मैक्सिमम ऑफ LSLC। इससे क्या होगा, ये फ्लोर की कमांड आपने यूज की और ये आपने क्या यूज किया, मैक्सिमम ब्रैकेट में, और LSLC लिख दिया। अब ये क्या करेगा, एक तो ये करेगा कि वो LS और LC जो आपको ऊपर आंसर आया है, ये LS है आपके पास और ये LC है। अब वो कमांड में पहले चेक करेगा इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही थी 104.5 mm आ रही थी, यही आ रही थी मेरे ख्याल में। यस सर। अच्छा, चलें, उसने डिफाइन कर लिया मैक्सिमम कौन सी है। फिर वो फ्लोर की कमांड जो है ना यूज कर रहा है, उससे क्या होगा कि वो पॉइंट वैल्यू को क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा, और यहाँ पे आंसर में डिस्प्ले होके आ जाएगा लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू दिस। डन? डन सर। ओके, नाउ वी विल गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। व्हाई वी नीड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मुझे कोई बताएगा इन दिस प्रॉब्लम और इन एनी ऑफ द केस, इन केस ऑफ ATM मशीन और इन केस ऑफ द डिजाइन ऑफ एनी ऑफ द। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देख रहे हैं कि हमें नहीं पता कि जो लेंथ आ रही है वो शीयर से बड़ी होगी या कंप्रेशन से बड़ी होगी। तो अब MATLAB में तो वो हो सकता है जो ऊपर से हम वैल्यूज पुट करके आ रहे हैं, हो सकता है दोनों इक्वल भी हो सकती हैं।
लेंथ दोनों की इक्वल भी हो सकती हैं, एक दूसरे से बड़ी हो सकती है, एक दूसरी पहले से बड़ी हो सकती है, तो उनमें से कौन सी लेनी है हमने मैटलैब को ये बात समझानी है। ठीक है, सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग वी यूज द कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। An if statement evaluates a logical expression and evaluates a group of comments when the logical expression is true. Okay, so ये एक loop हम command यूज करते हैं if की, हम यूज करेंगे if length of compression is greater than length of shaft, then display the length of compression. एक तो मैंने ये स्टेटमेंट यूज कर दी if में, साथ में मैं एल्स की स्टेटमेंट अब यूज करूंगा। या एल्स का क्या मतलब होगा, और, तो और फिर मैं क्या लिखूंगा, एल्स इफ। अब मैं क्या लिखूंगा, इफ लेफ्ट ऑफ सॉरी इफ लेंथ ऑफ, बताएं, लेंथ ऑफ की विद रिस्पेक्ट टू shear Shaft. is greater than length of key with respect to compression, then display length of key with respect to compression. ठीक है, जो दोनों केस आपने सॉल्व किया दोनों को कंपैरिजन करेगा। तो जो स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन को चलाएगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो लूप को एंड कर देगा। अब ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर द टर्मिनेटेड बाय द एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट इसमें होना जरूरी होती है। उसका फायदा क्या होता है कि अगर तो लॉजिकल एक्सप्रेशन उसको फॉलो नहीं कर रहा, अगर वो उसको ऑपरेट नहीं कर रहा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो फौरन एंड स्टेटमेंट पे आपके लूप से बाहर आ जाएगा। अगर तो वो उसको फॉलो कर रहा है तो वो लूप के अंदर रहेगा और जो स्टेटमेंट उसके अंदर होगी उसको फॉलो करेगा। अगर स्टेटमेंट गलत होगी तो उससे बाहर आ जाएगा एंड स्टेटमेंट से। इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज फॉल्स ऑल द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड, एंड इफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज ट्रू व्हाट विल हैपन, ऑल द कंडीशनल स्टेटमेंट्स विल बी अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, एनीवन? अच्छा ट्रू होगा तो आगे चल जाएगा और जी, और फॉल्स होगा तो स्किप कर देगा। एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट रिज्यूम्स आफ्टर द एंड स्टेटमेंट। ओके, स्क्रिप्ट फाइल में वो रिज्यूम कर देता है एंड स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल फॉर दिस फॉर्मेट वी हैव टू टाइप इफ, here we have to type what is logical expression, here we have to type the command what we want to do, and here we have the end statement. अगर ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आपने टाइप किया है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मेरी बात आप समझ रहे हैं? और कमांड में मैं लिख देता हूँ देन y इज इक्वल टू a प्लस बी। देन y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और अगर अब ये जो यूजर a और b की वैल्यू पुट करवाएगा, अगर a लेस देन b हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं रन होगा सब प्रोग्राम। यस, फिर प्रोग्राम रन नहीं होगा, फिर वो इस एक्सप्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसकी अगर हम छोटी सी एग्जांपल हम जल्दी जल्दी जो है ना देख लेते हैं। ये फॉर ये स्टेटमेंट है। लुक हियर, okay, this is the path of the program and I am copying it and I am pasting it in the MATLAB. This is the path of MATLAB. This is the given path. Now you can see I have entered the value of x that is equal to 10. I have entered the value of y that is equal to 23. I have entered the value of ये कर लें। ठीक है, नाउ अब अच्छा एक और काम भी कर सकते हैं, ये एक्स और वाई आप यूजर से भी ले सकते हैं। जो इनपुट का फंक्शन लगा के आप उसमें वो लेते हैं, एक्स और वाई यूजर पुट करेगा, आप मैटलैब खुद चेक करेगा। अगर तो एक्स वैल्यू ग्रेटर देन वाई है तो वो क्या कर देगा, 64 प्लस एक्स का आंसर बना देगा। एल्स क्या कर देगा, डिस्प्ले क्या कर देगा, इनवैलिड पिन और इनवैलिड नंबर। ये अब रन करेगा या नहीं करेगा, एनीवन? लूप आपको समझ आया या नहीं? सर ये नहीं रन करेगा क्योंकि 10 छोटा है सर 23 से।
देखिए 10 इज लेस देन 23, तो ये चीज तो चलो हल हो जाएगी। ए इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स नहीं देगा, लेकिन अब वो क्या देगा? रिस्पॉन्स इनवैलिड नंबर। इनवैलिड नंबर सर। इनवैलिड। वेरी गुड, इनवैलिड नंबर देगा। सो एंटर द नंबर, बताएं नंबर 5, सॉरी ये नंबर तो बल्कि वो हमने डिफाइन करवाया हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं इनवैलिड नंबर आ गए। यस सर। ओके अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ 23 कर देता हूँ। अच्छा अब देखा मैंने इक्वल कर दिया दोनों को, अब आंसर दिखेगा। फिर भी देखा? इनवैलिड नंबर होगा सर। ठीक है, अब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। डेट मीन्स हमें यहाँ पे इक्वल कंडीशन स्टेटमेंट लगानी होगी। इक्वल टू बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई पे डिफाइन करवाया हुआ है, तो यह नंबर वो लेस पे वो वर्क करोगा या ग्रेटर देन पे वर्क करोगा, इक्वल पे वर्क नहीं करोगा। अब हम एक और काम करते हैं, ये मैं अगर इधर मैं एक इक्वल टू का साइन डाल दूं यहाँ पे, क्या ख्याल है? अब चेक करें, ये देखें 87 आंसर आया या नहीं आया? यस सर। अगेन ओके, अब देखो ये, अब मैंने स्टेटमेंट क्या बढ़ा दी, अब मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू कह दिया से। ठीक है, अच्छा चलें इक्वल टू को जो है ना खत्म कर देते हैं, चल रहने दें बल्कि चलिए। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम एस को क्या कर देते हैं, ग्रेटर कर देते हैं, 56 कर देते हैं। ओके ओके जी रन। अब क्या कर दिया उसने, 120 कर दिया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अच्छा एक और काम आप करते हैं, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे उसमें। अब मैं चाहता हूँ कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल हो तो वो ये डिस्प्ले करवाए ए नंबर जो कि 64 प्लस एक्स है, और अगर वो उससे लेस है तो उधर जो डिस्प्ले है ना वो डिस्प्ले ये नहीं आना चाहिए। वो जो है ना वो कुछ इस तरह से कर दे, फॉर एग्जाम्पल बी एक नंबर हम शो करवा देते हैं, बी इज इक्वल टू 0। एग्रीड? सही हो अब गया क्या करेगा, अब क्या करेगा कौन बताएगा? सर। अगर प्रोग्राम ठीक हुआ अब तो B आंसर equal सही होगा, नहीं तो फिर b इज इक्वल टू 0 दे देगा। ओके अभी चेक करें, ये 120 क्योंकि वो बड़ा था, चलें ठीक है जी, अब हम इसे लेस कर देते हैं, हम 20 कर देते हैं। अब चेक करें b इज इक्वल टू 0। ओके लाइकवाइज आप यहाँ पे Yes, sir. कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल आई लव पाकिस्तान, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट ठीक होगी तो ठीक है, अदरवाइज वो उसको आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो कर देगा। ये देखें ठीक है, इसी तरह इनवैलिड की एंड सो ऑन। अब यही तो बेसिक वो प्रोग्राम होता है जो वो आपके पास जो एटीएम मशीन में वो चेक कर होता है, आप कोड चेक करता है 2-3 बार, उसमें एल्सिफ की 3 बार कमांड देता है, 3 बार कोड आपका चेक करता है, फिर वो उसमें उन्होंने लगाया होता है अगर 3 बार कोई नंबर गलत एंटर करे तो कार्ड कैप्चर कर लेना है और आउटपुट पे कमांड देनी है प्लीज कलेक्ट द कार्ड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथराइज बैंक। ठीक है, इस तरह का वो डिस्प्ले करवा देते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम अगर ठीक हो जाता है, अगर आपने वैलिड पिन दिया तो उसके अंदर अब 6-7 फंक्शन और आ रहे होते हैं। मनी ट्रांसफर करनी है आप लोगों ने फंड ट्रांसफर करने हैं, आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट पता करनी है या कुछ और करना है, तो वो सारे इसके अंदर हम डिफाइन करवाते हैं। ओके एनी क्वेश्चन? नो सर। Okay, no question. So this was the program. This was a condition statement. Okay, we have to provide input. Logical expression will check if given input satisfies the given logical expression. If it will satisfy and statement is true, then it will run the command and provide the output. Okay, and if statement is false, then what will happen? Loop will go to end and it will skip from if command. What are relation operators? Relation operators are used to compare the scalar values or the matrices of equal dimensions. For example, I have to say A is equal to B, A is less than B, A is greater than B, A is less than or equal to B, A is greater than or equal to B.
आप मेरी बात को पिक करें. These are your relation operators, and these relation operators are always used in MATLAB depending upon the demand. जैसे मैंने वो a is greater than b पे लगाया, तो जब मैंने इक्वल नंबर पुट किया तो वो उसने उसके लिए जो है वो एरर दे दिया था कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था. मैंने इक्वल पुट किया तो फिर वो उसका आंसर भी उसने दे दिया इक्वल नंबर्स पे. आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया. So this is your less than, this is your less than or equal to, this is your greater than sign, this is greater than or equal to, this is both equal to. ठीक है, इक्वल टू के लिए जो साइन यूज हो रहा है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके अलावा और क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे, नॉट इक्वल टू का साइन भी देख लें, और से देख लें नॉट इक्वल का. ठीक है. ओके, दिस इज योर एग्जांपल. इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कमांड एंड CSC क्लियर ऑल क्लोज ऑल x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 10 इफ x इज ग्रेटर देन y a इज इक्वल टू दिस एंड, ये हमने अभी परफॉर्म कर ली. और इफ x इज लेस देन y तो वो ये डिस्प्ले का ये करवा ले. ये आप लोग कर लेंगे खुद या नहीं बताएं? Yes, sir. ये वाली हो जाएंगी. If Yes, sir. कर लेंगे. ओके. अच्छा, ये तो मैंने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया था, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया था, ऐसे ही है. अब मैं मल्टीपल लॉजिकल एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ यूजर को. जैसे ATM मशीन के केस में होता है, अगर एक चीज उसने सही बता दी तो वो अगली चीज पूछता है वहाँ पे फंड ट्रांसफर करना है या कुछ और करना है. फिर वो कहता है फंड ट्रांसफर करना है, वो सही बताता है तो फिर वो क्या उसे पूछता है किस बैंक में करने हैं. फिर वो फर्दर पूछता है कितनी मनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है. फिर वो फर्दर उसमें रजिस्ट्रेशन बताता है आपको कि इतनी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. फिर आपको वो चेक करके बताता है ये यूज़र जो आपने पुट किया है आपका जो वैलिड बैंक नंबर है या इनवैलिड बैंक नंबर है. अगर स्टेटमेंट वो ट्रू हो तो फिर वो आगे इसको चलाता है, अदरवाइज वो लूप से बाहर आ जाता है. अभी देखिएगा, दिस इज योर इनपुट फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन 1. if statement is true, then it will go for command 1 and it will be gone for this operation. Okay, now if logical expression is false, it will again ask for the second logical expression. If statement is true, it will again go to the main target, and if it is false statement, then what will happen? It will go to the third logical expression. Again it will check if you lie in that category or not. अगर लाई करते हैं तो वो मेन टारगेट की तरफ लेके जाएगा, और अगर नहीं करते तो फिर वो स्टेटमेंट से बाहर लाकर स्किप करके बाहर फेंक देगा, कार्ड आपका आपसे कैप्चर कर लेगा. गॉट इट? okay, sir. Yes, sir. Okay, these are your logical operators. What are logical operators? For example, you have to use AND operators, OR operators, exclusive OR operators, NAND. आपने ये डिफरेंट ऑपरेटर्स देखेंगे, NAND गेट भी था उसमें, NOR गेट भी था, एक्सक्लूसिव OR भी था, वो भी काफ़ी ज़्यादा थे. तो AND गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AND स्टेटमेंट को ये AND से रिप्रेजेंट करते हैं, और OR को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे. ये लैपटॉप की की आपको अब सबको पता होगी ये कहाँ होती है. Yes, sir. ओके. Backspace. फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर वन इनपुट इज 0 एंड अनदर इनपुट इज 1, व्हाट विल बी आउटपुट इफ वी आर यूजिंग एंड लॉजिकल ऑपरेटर? व्हाट विल बी आउटपुट? 0, sir. वेरी गुड, 0. एंड गेट में दोनों का सेम होना जरूरी है. ठीक है, अगर सेम दोनों वैल्यूज होंगी, दोनों इनपुट सेम होंगी, तो वो आपको आंसर जो है वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स आपका आंसर आएगा. और गेट में कोई एक इनपुट आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो उस केस में वो आपको क्या दे देगा? ट्रू की वैल्यू देगा, अदरवाइज जो बाइनरी आउटपुट आएगी वो फॉल्स आएगी. एग्रीड? Yes, sir. ओके. सो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने यूज किया था इफ के साथ. तो आपने देखा था सबसे पहले इफ की कमांड यूज की, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज किया. अगर तो वो ठीक था तो वो कमांड को रन करेगा. ठीक है, अगर वो ठीक नहीं है तो अब वो सेकंड जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसकी तरफ जाएगा. उससे पहले हम एक कमांड यूज करेंगे, उसका नेम होता है एल्स इफ. गॉट इट? ठीक है, अब एल्स इफ लगाना जरूरी है. इधर एल्स का क्या मतलब होता है? या फिर. ठीक है, वो फिर इसको चेक करेगा, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो फिर वो अगेन थर्ड वैल्यू पे आ जाएगा, अगेन एल्स इफ. ठीक है, थर्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन रूट करेगा, अगर ठीक है तो कमांड पे आ जाएगा, नहीं तो फिर वो स्किप कर देगा. स्किप जब वो करेगा तो वो सबसे स्किप करेगा, वो इफ से स्किप कर देगा. गॉट इट? तीनों से वो स्किप कर जाएगा. जी, क्वेश्चन आ रहा था. No, sir. Nothing.
Okay, so this is your case. Please see it. X is equal to 10, y is equal to 23, z is equal to 51. अब यूज क्या हुआ हमें, ये जो एंड ऑपरेटर है उसको यूज करने का, देखें अब हमने मल्टीपल नम कंडीशंस इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इफ x इज ग्रेटर देन y एंड इफ x इज लेस देन y, sorry, if x is greater than y and if x is less than z, okay, then display this, otherwise end the statement. अब ऑपरेटर यूज करने का फायदा क्या हुआ, आप मल्टीपल इनपुट को कंपेयर करके अपनी आउटपुट जो करस्पॉन्डिंग है उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं. एनी प्रॉब्लम? फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में अप्लाई करते हैं, आपकी हाइट का इशू आता है. अब प्रोग्राम में आपने एंटर किया, फॉर एग्जांपल उसमें आपने डिफाइन करवाया आपकी हाइट है जी 5.5 फीट, x इक्वल टू 5.5 फीट. ठीक है, एक स्टूडेंट की आ रही है जी 5.7 फीट, एक स्टूडेंट की आ रही है 5.9 फीट. ओके, अब हम उसमें ये डिफाइन करवाएंगे अगर तो तीनों लेस देन 6 हैं और ग्रेटर देन 5 हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लें हाइट को. और अगर उनकी हाइट इससे या तो 5 से लेस है या 6 से ग्रेटर है तो उनको रिजेक्ट कर दें. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस जी. तो इस स्टेटमेंट पे एक प्रोग्राम देखते हैं. इस स्टेटमेंट पे ये जो एंड वाला ऑपरेटर है, प्लीज सी इट. Yes, this one. Please see it. And this is your A input. ये कौन बताएगा? अब इसे क्या होगा? A is equal to input A number other than 1 equal to. सर एक इनपुट आएगी. सर यूजर डिफाइंड है, मतलब खुद हम लिखेंगे Very good, वैल्यूज. excellent. It is user defined input. We have two inputs A and B and both are user defined. और इसमें डिस्प्ले वो क्या करवा रहा है? A number other than 1, B number other than 2, other than 1. यानी वो कहना ये चाह रहा है 1 पुट नहीं करना, इसके अलावा कोई भी चीज पुट कर दें. यस कह रहा है ना? सेमीकोलन में जो मर्जी लिखो, मतलब अपने हिसाब से. यस, अपने हिसाब से सेमीकोलन में कुछ भी लिख सकते हैं. अच्छा, अब क्या होगा? इफ A is greater than 1 और B is greater than 1, then A is equal to 0. इधर एस कर दें, आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, सॉरी, इधर एस कर दें. और अगर A is less than 1 और B is less than 1, then display enter a valid value. अब क्या होगा? रन करते हैं. सर ये और गेट लगा हुआ है तो और गेट लगा हुआ है. अच्छा, अब वो चेक करेगा इफ A is greater than 1 और B is greater than 1. अच्छा, greater than 1, A is greater than 1 पुट करें, क्या लिखें? 2 पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, चलें 5 पुट कर दी. ओके, एक इनपुट मैंने 5 पुट कर दी, दैट इज ग्रेटर देन 1. अब B is greater than 1 है. अब मैं अगर इधर पुट करता हूँ B is greater than 1, मैं अगर पुट कर दूं तो फिर तो ऐसे इक्वल 0 ही देगा. फॉर एग्जांपल मैं 5 6 पुट कर देता हूँ, ग्रेटर देन 1 ही है ना, तो आउटपुट क्या आएगी? 0 आ गया. अब इसी को अगेन सॉल्व करें. एक मैंने ग्रेटर देन इनपुट दी और B में लेस देन 1 पुट कर देता हूँ, 0. अब क्या आंसर आएगा? एनीवन? इंटर अ वैलिड वैल्यू. इंटर अ वैलिड वैल्यू. नो. और स्टेटमेंट है. 5 आंसर आएगा सर. सर ये 0 x इज इक्वल 0 ही आएगा. एंड केस में आपकी दोनों इनपुट सेम होनी चाहिए तो तब ट्रू आंसर आएगा. और केस में आपकी दोनों इनपुट जो हैं वो जरूरी नहीं है सेम हो. एक भी अगर ठीक होगी तो x इक्वल 0 सर x इज इक्वल 0 ही आएगा. x इक्वल 0 आएगा क्योंकि एटलीस्ट एक इनपुट तो ठीक है ना. लेट्स चेक. देखा? एग्रीड? ओके सर. ओके, Yes, sir. अगेन रन करें. अब a इज लेस देन 1 पुट करें, 0 पुट कर दिया और दूसरी वैल्यू भी -2 पुट कर दिया. अब दोनों लेस देन 1 है. अब आंसर क्या आएगा? इंटर वैलिड वैल्यू अब आएगा. ठीक है. अब और अगेन रन करें. एक वैल्यू मैंने -2 पुट की, B की वैल्यू में ग्रेटर देन 1 पुट कर रहा हूँ. अब क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल 0. 0 आएगा सर. और एक ट्रू है.
नो, एक स्टेटमेंट तो ट्रू है ना इसकी। x इज इक्वल एक 0 आएगा ना नंबर सर? देखिए, a इज लेस देन 1 है या नहीं है? यस सर, लेस देन 1 है -2। a हाँ, a इज लेस ग्रेटर देन देन 1 1 होना है। चाहिए, तो एक ट्रू एक फॉल्स है, एक -2 एक 5। हाँ, यस सर, तो x इज इक्वल 0 आएगा। ऐसे 0 आ जाएगा। बात समझ आ गई है? यस सर। ये इस तरह कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर आप यूज करके ना इस प्रोग्राम को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब जरा इसका देखें, स्टेटमेंट देखें, लॉजिकल एक्सप्रेशन देखें। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन था, ये इफ कमांड है, और ये आपकी जो इंटीरियर कमांड्स होती हैं, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इसको रन करेगा। अगर वो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इनपुट जो हमने दी है, तो फिर वो एल्स इफ पे आ जाएगा, फिर वो इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन को चेक करेगा, और अगर ये ट्रू हुई तो वो इसको फॉलो करेगा, इस लाइन को। अगर ना हुई तो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। डन? Okay, Done. so these were your conditional statement examples. You can also perform it on MATLAB. These are your some of the conditional statements for AND or exclusive OR gate. So this is your input A, this is your input B, 0 0 1 1. What is input B? 0 1 0 1. If you are using AND gate, what will happen? You will have value of 1 only in case when both inputs are true बोथ इनपुट्स और आर ट्रू। सेम, अदरवाइज वो सारों का फॉल्स आंसर देगा। और इसी तरह जो और है वो एक स्टेटमेंट का फॉल्स देगा जब दोनों चीजें फॉल्स होंगी, बाकी सब पे ट्रू आंसर देगा। ठीक है, अब जब आप और गेट का इन्वर्स करते हैं, यानी कि नॉट गेट लेते हैं उसका, अब मैं इसका एक्स और कर दूं तो एक्सक्लूसिव और कर दिया, अब क्या फर्क आएगा इसमें? वो आउटपुट को रिवर्स कर देगा। 0 थी तो बताएं क्या होगा इस केस में? सर ये ये एक्सक्लूसिव और है, ये एक्सक्लूसिव और है, इस केस में क्या होगा? सर एनीवन? अगर दोनों ट्रू हैं तो वो फॉल्स कर देगा। जी, दोनों ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा। वेरी गुड। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो तब भी वो फॉल्स करेगा, और अगर एक भी ट्रू है तब भी फॉल्स कर देगा। ठीक है, इसी तरह ये नॉट गेट होता है आपका। अब ये नॉट गेट आप किसका ले रहे हैं? अगर इनपुट ए का ले रहे हैं तो इसका इन्वर्स कर देगा। ये 0 है तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे। ऑन है तो ऑफ कर देगा, ऑफ है तो ऑन कर देगा। जी, ये इस तरह की चीजें आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल में की हुई हैं, इसको आप दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक थ्योरम जो है रिकॉल करवाया है। Okay, previous problem was about finding out the length of the key for the relative compression and shear stresses. So you have solved that problem with the help of script program. So this was your script program. ऐसे यस था, सर, स्क्रिप्ट लिखी थी। यस सर। यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व किया था, यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा सर, यहाँ तक प्रैक्टिस करेंगे। गुड, ओके। नाउ अब हम इसमें एक चीज ऐड कर रहे हैं। क्या चीज ऐड कर रहे हैं बताएं? सर अभी अगर वहाँ मतलब लेंथ छोटी हो तो दूसरा कोई डिलीवर कर दो, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे अभी। जी, अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज प्रॉब्लम? हमारे पास दो लेंथ हैं, एक बाई कंप्रेशन है और एक बाई शेयर है। ठीक है, अब उसमें वो क्या बता रहा है, अगर कंप्रेशन लेंथ शेयर लेंथ से ग्रेटर है, या अगर कंप्रेशन लेंथ टॉर्शन लेंथ से ग्रेटर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, प्रीवियस केसेस में हमने जो लेंथ फाइंड की थी वो कंप्रेशन से की थी और शेयर से की थी, शेयर से की थी। और इस केस में टॉर्शन से भी करेंगे आप। IT बस उसका फार्मूला फार्मूला गिवन है, उसका फार्मूला गिवन है। ये मैंने IT का भी इसलिए साथ ऐड कर दिया है। क्यों ऐड किया कौन बताएगा? ताकि तीनों चीज़ों को कंपैरिजन कर लेना। दो चीज़ें तो हर बंदा कंपैरिजन कर लेता है, दो चीज़ें कंपैरिजन करते तो दो कमांड लग जाती। इफ I is greater than IC then display this, and if IC is less than this then display this। अगर तीन कमांड होगी, अगर तीन वेरिएबल होंगे तो तीन कमांड आप लोग यूज करेंगे। किस तरह? पहले हम IS को कंपैरिजन करेंगे, शेयर लेंथ को। शेयर लेंथ को किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? बाकी दो लेंथ से। बाकी दो लेंथ कौन कौन सी हैं? लेंथ बाई टॉर्क, सॉरी लेंथ बाई टॉर्शन, लेंथ बाई कंप्रेशन। अब अगर आपकी शेयर लेंथ इन दोनों से ग्रेटर है तो क्या करेगा? लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शेयर, उसको राउंड ऑफ कर देगा। एग्रीड?
कि Yes, इस sir. स्टेटमेंट में लिखा है। अब वो चेक करेगा लूप, अच्छा उसने चेक किया, उसे पता चला नहीं भाई ये चीज तो नहीं है इस तरह, फिर एल्स इफ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब एल्स इफ में वो क्या चेक करेगा, अब बाकी चीजें चेक करोगा। अब आई सी को कंपेयर करें इस केस में, इस केस में हमने किसको कंपेयर किया था, आई एस, IS को इस केस में shear हम किसको कंपेयर करें, आई सी। compression को जी, अब आई सी को बाकी तो कंपेयर करें, इफ आई सी इज ग्रेटर देन आई एस एंड इफ आई सी इज ग्रेटर देन आई टी देन डिस्प्ले लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू राउंड ऑफ आई सी, एल सी, सॉरी, एनी प्रॉब्लम? no sir. Okay, now this is for third case, else if अब आई टी आ जाएगी, यानी कि अब लेंथ ऑफ लेंथ बाय द टॉर्शन आ जाएगी। और लेंथ बाय टॉर्शन अगर अब शेयर से ग्रेटर है या लेंथ बाय टॉर्शन अगर कंप्रेशन से ग्रेटर है तो फिर वो लेंथ ऑफ टॉर्शन डिस्प्ले करवाएगा और कंडीशंस एंड कर देगा यहाँ पे। अब क्या होगा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने ये स्क्रिप्ट बना लिया। अब आप इस सॉफ्टवेयर को, इस स्क्रिप्ट को किसी भी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट के प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ की एलिमेंट एंड फॉर 3 केसेस। कौन कौन से 3 केसेस हैं, शियर स्ट्रेस, Torsion, कंप्रेशन और टॉर्शन। compression. अब इसमें आप 10 और ऐड कर लें बेशक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और भी जो केसेस मिलते हैं और भी शियर स्ट्रेस की थ्योरीज मिलती हैं, उन सब से आप जो है वो की को डिजाइन करें। और क्या होगा, इधर उनको वैल्यूज को इधर आप निकालेंगे और इधर इफ एल्स स्टेटमेंट में आप लोग उसको डिफाइन करवाते जाएंगे, कर लेंगे खुद। Yes sir, हो जाएगा, प्रैक्टिस ओके, करेंगे। वेरी गुड, Yes, वेरी sir, गुड। कर लेंगे। इस चीज को आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है मैटलैब पे। मैंने आपको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाई थी क्लास में, वो क्लास होमवर्क था, ये आपका होमवर्क है। ये आप लोगों ने ठीक हो इसको गया। प्रॉपर सॉल्व करना है, एक प्रोग्राम लिखना और फिर उसी को जो एलसेफ से भी सॉल्व कर देना। ये पिछला तो सेम ही था ना, स्क्रिप्ट लिखाना सिखाया है इसमें एलसेफ कमांड आपको सिखाई है। ओके, तो दिस वाज आवर टुडे लेक्चर। अच्छा, इन एडिशन कुछ और एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास, अगर आप लोग चाहें तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहूंगा, लेक्चर हम अपना एंड कर देंगे इसके बाद फौरन। सर ये सारी क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा, फिर कर लेंगे उधर से। जी जी, सब ये कर दिया क्लासरूम, मैंने कब का अपलोड कर दिया है। आप क्लासरूम कभी ओपन करें तो आपको पता होना, आप क्या करें क्लासरूम। हाँ सर, ये आज वाला भी कर दिया। ये आज वाला भी कर दिया है, ठीक हो ये देखे ना, ये सारा हमने कर लिया, ये सारा हमने कर लिया, ये हमने नहीं किया। राइट ए मैटलैब कोड टू डिजाइन अ हेलिकल स्प्रिंग। अब ये वही केस होगा सारा जो पीछे हमने किया है। हेलिकल स्प्रिंग के जो फार्मूलाज हैं वो हम देखेंगे, गिवन पैरामीटर्स को देखेंगे, उस स्प्रिंग को डिजाइन करेंगे। ये डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में आप लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर नहीं आता तो मेरी क्लास में बताना, मैं ये सॉल्व करवा दूंगा। ये इसमें स्प्रिंग को डिफाइन करवाएगा, गिवन पैरामीटर को डिफाइन करवाएगा और स्प्रिंग को ऑप्टिमाइज डिजाइन में तैयार करेगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ये सारी जो वैल्यूज पैरामीटर्स गिवन है, ये सी ओ डी की वैल्यू चाहिए होती है जिससे हम स्प्रिंग को डिजाइन करते हैं। ये के कोफिशिएंट है स्प्रिंग का, और टाउ हमने फाइंड करना था। कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसको क्या है, कोड लिखोगे सिंपल और उसको राउंड ऑफ करवा दोगे। और ये डी नॉट इज ग्रेटर देन डी प्लस डी लिखा हुआ है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है सारी। अब प्रोग्राम के लॉजिक को आपने समझना है, इम्प्लीमेंट आप लोगों ने करना है, गाइड मैंने आप लोगों को करना है। ये हेलिकल स्प्रिंग के एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, ये मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं आपको 2 एग्जांपल करवा चुका हूँ विद रिस्पेक्ट टू हीट एक्सचेंजर एंड विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन ऑफ की एलिमेंट। एंड नाउ यू हैव टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ फॉर द डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। एंड दिस वाज द वन केस एंड दिस इज अनदर केस। ये मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवा दिया था, जो मैं चाह रहा था आपको असाइनमेंट दूं। डिजाइन ऑफ द हीट एक्सचेंजर ट्यूब फॉर द लेंथ पैरामीटर, ये मैंने आपको क्लास में डिफाइन करवा दिया था। एंड दिस इज योर, व्हाट वाज दिस, दिस इज योर अनदर प्रॉब्लम। ये आपका खुरमी का प्रॉब्लम है, उससे आप उठा सकते हैं, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं जो आप लोग खुद मैटलैब भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात मुझे बताएं, आपने इफ एल्स देखा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने आपको, आप वाइब्रेशन मेरे साथ से पढ़े हैं, आपको याद है मैंने बताया था जो S1 S2 आप रूट्स निकालते हैं, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन केस विल बी क्रिटिकल, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन केस विल बी underdamped, if roots are complex then case will be overdamped. Okay, so can you people use the conditional statement for those cases?
ऑब्वियसली यू कैन यूज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अक्सर आप लोग जो है वो सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को। ये आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर आएगा, जो हमने किया है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द टाइप ऑफ रूट्स। एग्री करते हैं मेरे पास से? एक इक्वेशन मैं आपको दे देता हूँ और उनको आपको कहता हूँ इस इक्वेशन के रूट्स निकालो, फिर आपको कहता हूँ कि चेक करो कि रूट्स रियल हैं, सॉरी अंडर डैम केस है, ओवर डैम केस है, या क्रिटिकल डैम केस है, या सिंपल ये बता दो कि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, या रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या रूट्स इमेजिनरी हैं। ये तीन ही केस हो सकते हैं ना। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये फार्मूला आप क्या करेंगे, मैटलैब पे टाइप करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आप या यूजर से ले लें या कोई इक्वेशन ऊपर टाइप करवा दें, क्या नाम है, ग्रेटर ब्रैकेट में। वो लिखना कैसे होता है। अब ये स्टेटमेंट बनेगी। इफ में आप लोग ये लिखेंगे, आप पहले क्या लिखेंगे, इफ x1 is greater, x1 and x2 is greater than 0, display रूट्स आ रही है। real. Else if x1 and x2 are less than 0, display roots are imaginary. Else if s1 and s2 are equal, then display roots are equal. That's all. It is very simple. a b c की वैल्यू आप यूजर से लें और that will be the one of the problem. ये आप लोग कर सकते हैं या नहीं? हो जाएगा सही। Okay, so this was your week 5 lecture. That is for the how to use the conditional and logical operators. Inshallah, in coming classes, we will go for the remaining logical operators and other possible type of statements, like how to use while loop, for loop, or switch statement, and so on. Okay. So this is the end of our today lecture. प्लीज मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करने दो, फिर आप लोग जा सकते हैं। Okay, 18 students have joined us. इनका ये लेयर बोर्ड है उनकी, ले आ रहे हैं लेके, कब तक आ जाएंगे? उनको कहीं जल्दी आ जाए, फिर जुम्मा पढ़ना होता है हमें। Here, just 20 students have joined us. 20 students ने ज्वाइन किया, रिमेनिंग कहाँ हैं? सर बाकी अब बंदों को क्या बोले सर, ग्रुप में मैसेज किया 1-2 दफा। अब देखें, अब ये वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अब मैं ये लेक्चर दोबारा तो नहीं करवाऊंगा, कभी भी नहीं करवाऊंगा। यस सर। फिर क्लास में मुंह उठा के बैठे होते हैं, क्लास लेनी नहीं है और उधर कहना है सर अब हम क्या करें। यस सर। Okay, this is your attendance. You people can go now. Please leave the session. Thank you for your time. सर Yes. सर ये मैटलैब से सर सवाल पूछना था कि हम कभी ये सर सिंबल एक्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो सर वो जी। मैटलैब के सर कमांड विंडो में आता है कि आपको जो है ये पहले लाइसेंस होना चाहिए आप और इंस्टॉल होना चाहिए, तब जाके आप ये सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स यूज कर सकते हैं। मेरा तो नहीं आता। सर वही कह रहा हूँ सर, हमने जब किया तो मेरे में तो यही आ रहा है कि आपका ये लाइसेंस होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए और इनेबल होना चाहिए। तो आपने पिछले 3 वीक से मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ मैटलैब, कहाँ से मैटलैब लिया आपने?
सर मैंने क्रैक वर्जन अपना डाला है 2018 का। खुद बनाया है? यस सर, खुद किया। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर आपने कहाँ से लिया था? क्या सर? सॉफ्टवेयर कहाँ से लिया था आपने? सॉफ्टवेयर कहाँ से लिया था? सर ये ऑनलाइन वेबसाइट से लिया था सर। आपने मेरी क्लास आज तक नहीं ली? बताएं आप में से कोई ऑनलाइन आके बताएं इनको, जल्दी करें। सर ये वो तो मैंने आपकी ली हुई है सर, वीडियो लेक्चर भी सारे किए हैं सर, लेकिन ये इसमें सर मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? मेरे ऑफिस में आ जाएं, मैं आपको देता हूँ सेटअप, लेके जाएं, इंस्टॉल करें। चलें ठीक आपके है। लैपटॉप में कोई मसला हो सकता है? नहीं सर, वो मैं आपको चले सर फिर ऑफिस में बता दूंगा। जी, आके सेटअप लेके जाएं। किसी और का इशू आ रहा है आप में से? ओके जी, ओके जी, लीव द सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।